Jai Hind students. So now today we are going to start with the rest of the question of exercise 9.3. Now these all questions which we will do in this lecture are very important for the paper point of view. But before I start, those who are new to the channel, subscribe the channel, press the like button and bell icon so that whenever I will upload a new video, then you will get the notification. Now come to fifth part. Till 1 to 4 I already did in the previous video. Now fifth part. Form a differential equation of family of curve y is equal to this, where a and b are the arbitrary constants. So how many arbitrary constants are there? 2. So we have to differentiate twice and we will remove the arbitrary constant from the solution, from the differential equation. So let us see. So given curve is y, GS is y is equal to e की power x a cos x plus b sin x. Okay, now differentiate with respect to x. So ये बन गया y dash यानी dy upon dx. First function as it is e की power x. Second आ जाएगा a, cos का करेंगे minus sin x plus b किसका? sin का करेंगे तो cos x. ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज cos x प्लस b sin x और इसका करेंगे तो e की पावर x. नाउ सी हियर केयरफुली, ध्यान से देखें. इसको इजी बनाने का एक तरीका और है. क्या? देखो, ये पहली बार डिफरेंशिएट करके आया. नाउ दिस इज टोटली y, ये पूरा का पूरा क्या है? y है. तो इंस्टेड ऑफ दिस आई एम गोइंग टू राइट हियर y. सो y डैश is equal to e की पावर x minus a sin x plus b cos x plus y. Clear? Again, I am telling you can use any ways or mean to solve these general solution and to convert these general solution in the किसमें? differential equation. Now again differentiate with respect to x. y dash का y double dash. Again इसका e की पावर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका करेंगे माइनस a cos x, इसका करेंगे माइनस b sin x. क्लियर? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का किया. नाउ प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस b cos x और फर्स्ट फंक्शन का तो e की पावर x प्लस y का करेंगे y डैश. क्लियर? नाउ कम टू हियर. इसको मैं इधर लाता हूं. इसको ध्यान से देखो. इफ आई विल टेक नेगेटिव साइन कॉमन देन अगेन इट विल बिकम y. सो ये बना y डबल डैश, ये इधर आया माइनस y डैश इज इक्वल टू माइनस कॉमन और ये रह गया e की पावर x a cos x plus b sin x. क्लियर? प्लस e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x. सो जिस की वैल्यू बनती जाए वो रिमूव करते जाओ, देन दीज क्वेश्चंस विल बी बिकम वेरी इजी. अब अगेन ये y बना, इसको मैं y लिखता हूं एंड ब्रिंग दिस दैट साइड, दिस साइड. तो ये माइनस y हुआ तो ये प्लस y इज इक्वल टू. अब ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू बनी है e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x, जब हमने पहली बार डिफरेंशिएट किया था तब बनी थी. ये फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट किया ये बना, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये बना. नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन use this value to remove a and b. So from equation second से हम इसकी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? y डैश माइनस y. क्या आएगी? y डैश माइनस y.
Now bring all these, take all these terms to this side. Y double dash minus y dash plus y minus y dash plus y is equal to 0. Y double dash minus 2 times y dash plus 2 times y is equal to 0. Clear? So simple. So like this, you can find out the solutions of these kind of general solution. And to make a differential equation which can represent the family of curves of these kind of nature. Clear? Pause the video to note down. Okay, now come problem 6. Form the differential equation of the family of circles touching the y-axis at origin and center lie on the x-axis. So we know that the equation, the family of circles which touches the y-axis, it means कि जो सेंटर होगा उसका वो कहां पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा. अगर क्या उसने कहा है, फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन, अगर वाई एक्सिस जो है उसका वो ओरिजिन पे टच कर रहा है, इसका मतलब सेंटर जो होगा सर्कल का वो कहां पे होगा, एक्स एक्सिस का. एंड लाइक दिस वी कैन ड्रॉ द डायग्राम. ये सर्कल, सॉरी, like this. जिसका जो सेंटर होगा वो कहीं एक्स एक्सिस पे होगा. लेट दिस इज A0. इसका सेंटर ये मान लेते हैं और ये यहां पे 0 0 है. क्लियर? सो दिस इज द सर्कल. सो वी नो दैट the circles which touches the y-axis at origin, we know that the circles which touches the y-axis at origin, its center lies on x-axis. Its center lies on x-axis. Let it be small a0. This is A, this is O, this is B. Clear? Now, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? ना इक्वेशन ऑफ सर्कल वो क्या होगी, ये x है तो ये आएगा. इक्वेशन ऑफ सर्कल होती क्या है वैसे, जब सेंटर गिवन हो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर. क्लियर? रेडियस. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये आ जाएगी x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 है तो नो नीड टू राइट, y का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस. व्हाट इज रेडियस हियर? a. ये रेडियस ही तो हुआ, तो a का स्क्वायर. ओके, नाउ हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर देयर? 1, दैट इज a. ठीक है, नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट वंस एंड वी हैव टू रिमूव द आर्बिट्री कांस्टेंट्स. सो करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. 2 नीचे x माइनस ए, इसकी दोबारा से 1, 2y, y की दोबारा से y डैश इज इक्वल टू 0. सो व्हाट इज लेफ्ट विद अस? देखो ध्यान से, 2x माइनस 2a प्लस 2y y डैश इज इक्वल टू 0. सो वी हैव टू रिमूव दिस 2a. सो देखते हैं कैसे. या तो 2 को रिमूव कर दो, तो व्हाट इज लेफ्ट विद अस? x माइनस a प्लस y डैश इज इक्वल टू v. ये सेकेंड इक्वेशन आ गई. फ्रॉम, अब a की वैल्यू, फ्रॉम वेयर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a? भाई जो इक्वेशन गिवन है वहीं से मिलेगी.
फ्रॉम इक्वेशन 1 ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर, प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, दिस इज कैंसल आउट, तो ये आ गया, इसको उधर ले जाते हैं, सो इट विल बिकम 2ax इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2x, क्लियर। यहां से 2a की भी निकाल सकते थे, कोई बात नहीं, एक ही बात है, पुट इन इक्वेशन 2, सो a की वैल्यू यहां पुट करते हैं, व्हाट वी विल गेट, x माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2x प्लस y डैश इज इक्वल टू 0, टेक एलसीएम, 2x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy डैश इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हुआ तो ये बना x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy डैश इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन for all those circles which touches y-axis at origin. Clear? Pause the video to note down. Now, problem 7. Problem 7. Form the differential equation of the family of parabolas having vertex at origin and x-axis along positive y-axis. तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ कौन सा पैराबोला बनता है, अपवर्ड पैराबोला बनता है, लाइक दिस, अपवर्ड पैराबोला, एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्या होती है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. नाउ कम हियर, सॉल्यूशन, we know that the family of parabola, the family of parabolas having vertex at origin and axis along positive y-axis is कौन सी होगी, x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, कौन सी होगी, we know that the family of parabolas having vertex at origin and axis along positive y-axis, कौन सा होगा family of parabolas, वो x square is equal to 4ay. Now do one thing, bring this y that side, x square upon y is equal to 4a. Now differentiate with respect to x, and how many times we have to differentiate, only once, because one arbitrary constant is there. डिफरेंशिएट करते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज x स्क्वायर का 2x माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का y डैश इज इक्वल टू 0, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, खत्म हो गया, 2xy माइनस x स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू 0. सो योर आंसर इज, क्या आंसर आया, वेदर यू कैन टेक कॉमन ऑल्सो or you can leave like this also. So your answer is 2xy minus x square y dash is equal to 0. It's very simple. Clear? Pause the video to note down. Now come to problem 8. Form the differential equation of the family of ellipse having foci on y-axis, center at origin. So we know that the family of ellipse having foci on y-axis
and center at origin is क्या, x square upon b square plus y square upon a square equal to 1. And this is which kind of ellipse? This is vertical ellipse. कौन सा ellipse है ये है vertical ellipse, like this, जिसका फोकी y एक्सिस पे है और सेंटर किस पे है, ओरिजिन पे. क्लियर? लाइक दिस. Okay, now two arbitrary constants are there, so we have to what? We have to differentiate twice and we have to remove this to make a differential equation of all the family of ellipse having foci y-axis and center at origin. Chalo, let us see. This is 1. Differentiate with respect to x. 2x upon b square plus 2y और y का दोबारा से y डैश अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्लियर? इसको उधर ले जाते हैं, इसको यही रख लेते हैं. 2y y डैश अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन b स्क्वायर. 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल. देन डू वन थिंग, x को नीचे लाओ, इसको ऊपर ले जाओ. y डैश upon x is equal to minus a square upon b square. This is your second equation. Now again differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. दोबारा से differentiate करते हैं. So u upon v का formula, denominator का square, denominator as it is, numerator करेंगे. Again we will use product rule. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डबल डैश, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज y का करेंगे y डैश, तो ये बन गया y डैश का स्क्वायर. ये बंद हो गया. सो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर कर दिया माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 0. क्लियर? ओके, नाउ इसको उधर ले जाते हैं, 0 हो गया. x मल्टीप्लाई करते हैं y डबल डैश प्लस x y डैश का स्क्वायर माइनस y डैश इज इक्वल टू 0. क्लियर? सो इसको मैं लिख सकता हूं x y d स्क्वायर y अपॉन dx का स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस y dy अपॉन dx is equal to 0. So this is the required differential equation for all the family of ellipse which are having foci on y-axis and center at origin. Clear? Pause the video to know. Come to problem 9. Form the differential equation of family of hyperbola having, again we have two types of hyperbola, horizontal, vertical hyperbola. So having foci on x-axis and center at origin, this is horizontal hyperbola. So we know that the equation, family of hyperbola की जो equations होगी, so solution. We know that the family of hyperbola having foci on x-axis and center at origin is x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. और हाइपरबोला होता कैसे है? Listen, like this. This is horizontal hyperbola. Okay. So this is the given required equation. Two arbitrary constants are there. So differentiate with respect to x twice. पहली बार करेंगे 2x upon a square minus 2y y dash upon b square equal to 0. Again like previous question, इसको उधर ले जाते हैं. minus 2y
वाई डैश अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वेयर. कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल. सो वाई डैश अपॉन x इज इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर. क्लियर? नाउ डिफरेंशिएट अगेन. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं. सो ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की y डबल डैश प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज y की करेंगे y डैश. तो ये y डैश का क्या आ जाएगा? स्क्वायर. बंद कर देते हैं. माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर की करेंगे तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 0. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 हो जाएगा. मल्टीप्लाई दिस एक्स वाई डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0. So this is your solution for all the hyperbolas which are having foci on x-axis and center at origin. This is horizontal hyperbola. Pause the video to note down. Problem 10. Form the differential equation of family of circle having center on y-axis and radius 3 unit. तो center किस पे है? y-axis पे है. So let 0 be the center on y-axis. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो क्या होती है? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर. तो रेडियस इज गिवन 3 यूनिट्स टू यू. सो इक्वेशन क्या आ जाएगी? x का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर. सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2ab is equal to 9. Now differentiate with respect to x once only, क्योंकि one arbitrary constant is there, not constant, arbitrary constant. So ये आ गया 2x plus 2y y dash plus 0 minus 2b y dash is equal to 0. So ये 0 बन गया. यहां पे b y का किया, y डैश आ गया, 2 कॉमन लेके 0 हो गया. x प्लस y y डैश माइनस b y डैश इज इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और b की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां से लेट अस सी. या तो हम क्या करें, b की यहां से वैल्यू निकालें और यहां पुट करें. That will be the best option. So this is called star. So यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो b की उस तरफ ले जाते हैं. b y dash is equal to x plus y dash. Now b is equal to x plus y dash upon y dash. So this value put in equation star. Put b is equal to x plus y dash upon y dash in equation, किसमें? इक्वेशन स्टार. स्टार इक्वेशन में हम क्या करते हैं? पुट कर देते हैं इसको. तो यहां पुट कर दो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश is equal to 9. क्लियर? टेक एलसीएम. सॉरी ये b का इसका स्क्वायर है. टेक एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस एलसीएम लेंगे तो ये पूरा ये आ जाएगा वाई डैश माइनस एक्स, ठीक, माइनस वाई डैश अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू. क्लियर? सो हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया. किसका? b का. जो b की वैल्यू पुट की थी यहां पे उसका एलसीएम आ गया. तो ये क्या हो गया? कैंसल आउट. नाउ अगेन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई डैश का स्क्वेयर. क्लियर?
is equal to 9. Now again take LCM. तो x square y dash का square plus x square equal to 9 y dash का square. It implies यहां से x square कॉमन ले लेते हैं. What is left with us? ये आ गया y dash का या y1 का square plus 1 minus 9 y dash का square equal to 0. So our equation is, the differential equation is dy upon dx का square plus 1 minus 9 dy upon dx का whole square equal to 0. Pause the video to note down. The last MCQs of this exercise 11 and 12. MCQ question and MCQ. So this question is form differential equation whose general solution is given. So जिसका general solution हमें दे रखा है C1 e की power x plus C2 e की power minus x. How many constants, arbitrary constants are there? 2, C1 and C2. So we are going to differentiate how many times? Twice. 2 बार इसको differentiate करेंगे. dy upon dx is equal to C1 e की power x. इसका करेंगे तो -1 आएगा, तो minus C2 e की power minus x. Okay. Again differentiate. d square y upon dx का square equal to C1 e की power x plus C2 e की power minus x. This is the value of y. So d square y upon dx का square, इसको इधर लाते हैं minus y equal to 0. So this is the required differential equation. Come to 12. Here I written all the options. यहां पे मैंने सारे options लिखे हैं. क्यों बताता हूं. Which of the differential equation has y is equal to x as one of its particular solution? Particular means जब वैल्यू बताई जाती है हमें किसी भी पॉइंट पे, तो वो कहता है अगर y इक्वल टू x है तो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन रहा है. देखते हैं. देखो सब में डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका भी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं. सॉल्यूशन y इज इक्वल टू x, सो dy अपॉन dx कितना आ गया 1. अगेन d स्क्वेयर y अपॉन dx का स्क्वेयर कितना आ गया 0. अब ये तीनों वैल्यू पुट करके देखनी है कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन इनका सॉल्यूशन बनेगा. देखो सबसे पहले इसमें करते हैं 0, इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसकी 1 यानी माइनस एक्स स्क्वेयर, यहां पे प्लस एक्स स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट हो गया तो 0 इक्वल टू एक्स आ गया, तो ये तो नहीं बनेगा. सेकंड में देखते हैं. देखो 1 बाय 1 करते हैं. फर्स्ट इसको देखते हैं, ध्यान से देखो. 0 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक एक्स है, y इक्वल टू एक्स है, एक्स स्क्वेयर, क्या ये है? नो. सेकंड देखो 0 प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स, नहीं, ये तो एक्स स्क्वेयर क्या आ गया 0 आ गया. ठीक है. सो ये भी सॉल्यूशन नहीं है. नाउ कम टू दिस. लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं. कम टू सी पार्ट. थर्ड 0 माइनस एक्स स्क्वेयर क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, प्लस एक्स स्क्वेयर क्योंकि y की जगह x लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0. सो ये इसका सॉल्यूशन है. फोर्थ भी चेक कर लेते हैं क्या फोर्थ है. सो 0 प्लस एक्स स्क्वेयर, नो, इट इज नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर C option is the correct option. Pause the video to note down and solve all the questions of this exercise. It's very easy exercise and you know, just watch the introduction video carefully कि how to make the differential equation of any general solution or how to solve these kind of questions. Till that, Jai Hind.